और दोस्तों क्या हाल है तुम्हारे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एआई को पैसिव इनकम के बारे में कुछ आइडिया एक्चुअली में है या नहीं, और हम देखने वाले हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता है आर दे यूजेबल इन रियल लाइफ और नॉट। हमारे इंडिया का सिनेरियो स्पेसिफिकली देखेंगे, ये जो चीजें सजेस्ट कर रहा है ये हम एक्चुअल में कर सकते हैं यहाँ पे या नहीं। इसको एक कमांड देते हैं। तो इससे हम अभी ये पूछने वाले हैं कि इसको कोई पैसिव इनकम स्ट्रैटेजीज के बारे में पता है या नहीं सबसे पहले, और ये स्पेसिफिकली हम इंडिया के लिए कर रहे हैं। सो वील मेंशन इन इंडिया। देखते हैं कैसे सजेशंस देता है हमें। So the first suggestion is freelancing. Offer your skills on platforms like Upwork or Fiverr in areas like writing, editing, design and programming. हम इससे ये पूछ लेते हैं कि इसे पता भी है what is passive income. Passive income is money you earn that requires little to no effort to maintain. Basically, इसका मतलब ये है कि पैसिव इनकम वो चीज है कि आप करो ना करो पैसा आता रहेगा। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं and see if this is actually passive income or not. So the first suggestion is freelancing. Freelancing कहीं से भी passive income नहीं है. It is absolutely a source of active income. अगर तुम्हारी गुडविल बढ़ जाती है, you can get paid more for it, but it is definitely active. You'll have to work those hours and then you'll get paid. Let's move on to the next one. The next thing is blogging/YouTube. ये पैसिव कैसे है? I am giving my time right now. ये वीडियो को जितनी भी देर हो गई है, I have given my time for this. हो सकता है इससे मेरे को पैसे मिले, हो सकता है ना मिले. This is not at all passive in my opinion. So, create valuable content, monetize through ads, sponsorship, affiliate marketing takes time and consistent effort to build an audience. इसका एक पॉइंट ठीक है, affiliate marketing would be a source of passive income. अगर एक वीडियो तुम्हारी eternally viral हो जाए and then there is a conversion rate of say 0.1% too, तो वो एक source of passive income बन जाएगा, but it will not be that much of an amount. So you'll have to consistently go viral for like 10-20 videos. So उस hypothetical scenario में yeah you have made a passive income, but for the general public I don't see that happening, guys. Selling digital products. So it says selling products online can be a source of passive income. I beg to differ, my guy. Selling requires shitload of work. अगर तुम्हारा store up and running हो भी जाता है, you have to constantly adapt to the market. जैसे सबको पता है businesses are dynamic and if you're selling online products, it is a business. Trend change होंगे, you have to research more products, you have to search into SEO. It's not that easy, guys. It's not passive income at all. So this is low investment, high effort. इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ इसके समझ नहीं आए suggestions. Let's move on to medium investment, medium effort. Peer-to-peer lending. Invest in individuals or businesses through platforms like Lending Club, Fairsend, offers higher return than traditional savings account but carries some risk. So peer-to-peer lending एक बहुत ही ज़्यादा controversial topic है. Honestly, peer-to-peer lending होता क्या है? अब तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें पैसा दे दिया, तुम्हारा बिजनेस है, तो तुम कहते हो कि यार बैंक मेरे को 13% पे 14% पे लोन दे रहा है, यार तू मेरे को पैसा दे, मेरे से 11% ले ले, मैं खुश, एफडी से ज्यादा रिटर्न बनता है. बट द ट्रूथ इज दिस इज वेरी रिस्की. पीयर टू पीयर लेंडिंग से ज्यादा रिस्की कुछ नहीं है. हाँ, ये जो एप्स इन्होंने सजेस्ट की हुई हैं, दे टेक योर मनी एंड स्प्लिट इट इनटू लाइक 10,000 लोन्स, 100,000 लोन्स, कुछ ऐसा. सो द अमाउंट ऑफ रिस्क मिटिगेट्स. अब मान लो मैंने 24% पे किसी को दिया और 20% पे किसी को दिया, ऐसे कर करके एक पूरा पोर्टफोलियो बना दिया, एक मिक्स बना दिया बेस्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग. तो जिन लोगों को ये लोग लोन देते हैं, दे आर नॉट क्रेडिट अप्रूव्ड क्लाइंट्स, बिकॉज अगर उनको लोन बैंक से मिल सकता है वो वहां से लेते हैं. ये 20% पे 24% पे क्यों लोन उठाते हैं? These are the people they lend to. So it does carry a lot of risk in my opinion. Personally, if you want to risk your money, equities are a better option because in my opinion they offer kind of better returns in the long run and are less riskier than that, because वहाँ पे your portfolio can go down in the short term, but in the long run if things are good for the country it eventually comes back up. So my personal opinion is avoid peer-to-peer lending. That is passive income in my opinion, but it carries a lot of risk. So without risk वाला passive income कुछ होता है नहीं. आगे देखते हैं. The next thing they mentioned is dividend paying stocks. So dividend paying stocks can be a good bet for some, but honestly if you are making some investments you should not totally rely on dividends, because dividends do not tell the true picture of the company. If you are investing into a company per se, or if you are investing your money into anything, dividends are a surefire way to lure you in my opinion. तो जैसे अब तुमने देखा होगा आजकल चल रहे हैं कि 12% रेंटल अश्योर्ड ये प्रॉपर्टीज जो दिल्ली एनसीआर वगैरह में चल रही हैं, दैट इज डिविडेंड. हाई डिविडेंड स्टॉक्स डू नॉट गारंटी यू सक्सेस. मोस्ट जो अच्छी ग्रोइंग कंपनीज होती हैं दे पे यू लेस डिविडेंड्स. सो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज आर कॉन्ट्राडिक्टिव इन नेचर. तुम एक्सपेक्ट करोगे कि तुम इससे अच्छा पैसा बनाओगे, बट मोस्ट केसेस में क्या होगा कि व्हाइल यू आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स, तुम्हारा स्टॉक प्राइस इवेंचुअली नीचे जा रहा है.
so in the long run they might not be beneficial. I'm not saying ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते. अब जैसे पास्ट एग्जांपल लेते हैं ITC, अमेजिंग डिविडेंड, अमेजिंग कंपनी है, उन्होंने डिविडेंड्स कंसिस्टेंटली पे किए, उनका स्टॉक प्राइस भी अब मेंटेन हुआ है ओवर टाइम जाके. यू हैव टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च ऑफ द स्टॉक कि इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो सकती है फ्यूचर में आने, एंड देन हो सकता है तुम डिविडेंड्स के लिए भी करो. बट पर्सनली आई प्रेफर इन्वेस्टिंग फॉर द ग्रोथ. हाई इन्वेस्टमेंट, लो एफर्ट. रेंटल प्रॉपर्टी. परचेज अ प्रॉपर्टी एंड रेंट इट आउट फॉर स्टेडी इनकम स्ट्रीम रिक्वायर्स significant upfront capital and ongoing maintenance. So it does not specify rental property commercial है या residential है. So अगर तुम्हारे पास एक बहुत ही बढ़िया commercial property है, जैसे एक मेन रोड पे बहुत बड़ा सा शोरूम जहाँ पे तुम गाड़ियों वाड़ियों की कंपनी को रेंट आउट कर सकते हो, बैंक्स को रेंट आउट कर सकते हो, and that is a very good way to secure passive income. But that is a high token amount of money. अब जैसे हमारे एरिया में ऐसी चीज के लिए तुम्हें एटलीस्ट 10 करोड़ के आसपास पैसे चाहिए होंगे, which is a lot of money. और this is something we can achieve after retirement maybe, and not in the hands of everyone. जनरल लोगों के लिए हो सकता है ये चीज ना काम करे, बट देर आर सम आउट देयर उनके लिए हो सकता है. दिस कुड बी गुड एडवाइस. अब टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, अगर तुम ग्रोथ एस्पेक्ट से देख रहे हो तो आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट इज वेरी सब्जेक्टिव. और रियल एस्टेट बहुत ही ज्यादा तुम्हें एरिया की नॉलेज प्लस न्यूज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. वी आर नॉट गोना डाइव इनटू दैट. विल जस्ट टॉक अबाउट रेंटल यील्ड. एक बहुत ही धांसू सी रेजिडेंशियल तुमने जगह पे घर ले रखा है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल है. तुम्हारा रेंटल यील्ड मैक्स कितना हो सकता है? 10%, 11%? नहीं यार, मोस्ट रेजिडेंशियल जगहों पे 2 से 3% का रेंटल यील्ड होता है पर एनम. लेट दैट सिंक इन. ग्रोथ अगर तुम नहीं सोच के कर रहे, सिर्फ पैसिव इनकम के लिए कर रहे हो, रेजिडेंशियल रेंटल सक्स, उसके लिए मत सोचो. ये सब यूएस के कॉन्सेप्ट्स हैं, दे डोंट वर्क इन इंडिया. हमारे यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है और सब अमीर है भाई, सब खरीद के रेंट आउट करना चाहते हैं. तो वही डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसलिए रेंट्स आर नॉट गुड रेजिडेंशियल. हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट चूते है. अबे यार, सेविंग्स अकाउंट में तो इन्फ्लेशन भी नहीं बीट होता. पैसिव इनकम का क्या उखाड़ लोगे जब वो पैसा ही ओवर टाइम का ही खा के मर जाएगा. इससे अच्छा तो खर्च कर लो भाई. हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट जो ये कह रहा है, पहली बात तो तुम उसमें एक मेजर चंक ऑफ मनी रख नहीं सकते क्योंकि हाई यील्ड वाले रिस्की अकाउंट्स होते हैं. 5 लाख से ज्यादा सम इंश्योर्ड नहीं होता. ऑल्सो जो 5 लाख इंश्योर्ड होता है उसमें भी तुम्हें आरबीआई के चक्कर काटते रहने पड़ेंगे इफ द बैंक डिफॉल्ट्स. तो देयर इज दैट रिस्क जो कहते रहता 5 लाख तक इंश्योर्ड, 5 लाख तक इंश्योर्ड, देख कर लगाया करो फिर भी, क्योंकि इफ द बैंक डिफॉल्ट्स तुम्हारे को बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत सरदर्दी लेनी पड़ेगी अपना पैसा रिट्रीव करने के लिए. और जो तुम्हें प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट था इफ द बैंक डिफॉल्ट्स वो भी नहीं मिलने वाला. जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. सो हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट इज अ शिटी आइडिया. मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, बकवास है. सेविंग्स अकाउंट आर जस्ट मेंट टू होल्ड ऑन टू द मनी दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड इन द फ्यूचर. तुम्हें फोर्सिएबल फ्यूचर का जो इमरजेंसी फंड है दैट शुड बी इन योर सेविंग्स अकाउंट. अदरवाइज तुम्हारा जो पैसा है दैट शुड बी इन्वेस्टेड इनटू स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, व्हाटएवर. बट दैट मनी शुड बी गोइंग टुवर्ड्स बीटिंग इन्फ्लेशन. तुम्हारे पास एक मेजर चंक ऑफ योर मनी सेविंग्स में नहीं होना चाहिए. बेसिकली एक्सपेंसिव इमरजेंसी फंड, दैट्स इट. थोड़ा बहुत एक्सेस, अगर तुम बहुत अमीर हो तो थोड़ा एक्सेस डेफिनेटली, श्योर, व्हाई नॉट. अगर नहीं हो, इमरजेंसी फंड बनाओ, एक्सपेंसेस को अकाउंट करो. यार तुम बहुत कंजर्वेटिव हो, तुम फ्रीलांस हो फुल टाइम, साल भर का एक्सपेंस रख लो ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बैंक में. आई थिंक मैं अदर साइड ऑफ द स्टोरी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ. प्रॉब्लम मोस्ट लोगों की होती है कि होता नहीं है. आई नो दैट एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरिगार्ड दैट, बट जो लोग ज्यादा ही कंजर्वेटिव चलते हैं मैं उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ. एंड हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट आइडिया सक्स. द नेक्स्ट आइडिया इज फिक्स्ड डिपॉजिट एंड बॉन्ड्स. सेम एज अबव. नो. इसने कुछ टिप्स भी दी हुई हैं. बी पेशेंट, रीइन्वेस्ट योर अर्निंग्स, सीक प्रोफेशनल एडवाइस और डाइवर्सिफाई योर इनकम स्ट्रीम्स. तो इन 4 में से जो बार्ड कह रहा है वो एक बहुत सही चीज कह रहा है. सीक प्रोफेशनल एडवाइस. बार्ड की एडवाइस पे मत जाओ गाइस. डू योर ओन रिसर्च. सीक प्रोफेशनल एडवाइस इफ यू नीड टू, बट जस्ट डोंट पुट योर मनी वेयरएवर people on the internet tell you to and whatnot. Do your own research. Always study the risks before you put your money somewhere. भाई अगर तुम 2-3% एक्स्ट्रा के लिए बहुत ज्यादा रिस्क अगर बढ़ा रहे हो, जैसे तुम अगर बॉन्ड्स में कमा रहे हो 9% और ये पीयर टू पीयर लेंडिंग में तुम्हें 11 मिल रहा है, 2% डिफरेंट, बट तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क इज ग्रेटली मैग्निफाइड. डू नॉट एंगेज इन दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स. हाँ, कई जगह ऐसा होता है कि भाई सॉलिड रिस्क बट यू कैन अर्न 50% ROI, तो फिर करो कैलकुलेटेड रिस्क लो. 1-2% के लिए छोटी मोटी चोरियों करने के लिए इतना रिस्क मत लो अपने कैपिटल में. मेहनत की कमाई होती है भाई. सो इज पैसिव इनकम फ्रॉड?
The concept of passive income is not fraud in my opinion. There are some ways to build passive income, but they require lots and lots of work, and nothing is totally passive in my opinion. कुछ ऐसी चीजें जैसे royalties and stuff, they can be passive income, but major लोगों के passive income का concept इतना इजीली अचीवेबल नहीं है. इट साउंड्स लाइक अ ड्रीम के घर बैठे बैठे पैसा आ रहा है बिना मेहनत करे, बट इन वन वे और अनदर मेहनत तो करनी पड़ती है. एक पैसिव इनकम के ख्वाब को लेकर अपना जॉब वॉब क्विट मत करो एंड स्ट्राइव टुवर्ड्स इंक्रीजिंग योर बेसिक इनकम. जो तुम अपनी प्रोफेशन से कमाते हो उसको इंक्रीज करने पे ज्यादा ध्यान लगाओ. इंक्रीज दैट, सेव लोड्स ऑफ इट एंड इन्वेस्ट. उससे तुम ओवर टाइम एक कॉर्पस बना पाते हो जिससे तुम मिनिमल एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स के साथ प्रोबेबली रिटायर हो पाओ एंड पास ऑन टू द future generations if that's what you want to do. Honestly, that's a goal of mine. That's it for this video, guys. If you like this, drop a like down below. मेरे को पता है ये totally different है from the content we usually do, but I'm personally interested in finance. तो मैंने सोचा एक फाइनेंस वीडियो बनाई जाए. हमारा रेगुलर कंटेंट तो यूजुअली आता रहे, पर कभी कभी हो सकता है मैं तुम्हारे साथ कुछ फाइनेंस से रिलेटेड बातें भी करूँ. Stay tuned, guys. See you.